Hello students, so now today's our next topic, motion of the object under the influence of gravitational force of earth. In the previous video we have discussed about the acceleration due to gravity for the earth and for the moon. I hope कि आप सब लोगों को वहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। So before going to start this topic, clear, we will move to the previous chapter, chapter number 8, motion in a straight line. Clear, in that chapter we have discussed about the three equation of motion. Clear, so these three equation of motion are, the first equation is V is equal to U plus AT. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, क्लियर। एंड द सेकंड इक्वेशन इज S is equal to ut plus half at square. This is your second equation. क्लियर। इस रिलेशन में वेलोसिटी टाइम रिलेशन था, ये था पोजीशन, ये पोजीशन टाइम रिलेशन थी आपकी, क्लियर। और एक थी आपकी वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। जो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन थी वो थी आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. So these three equations we have used in chapter 8. ये तीन इक्वेशन हमने चैप्टर 8 में यूज की थी। These all equation are for a body moving along the ground. But in this chapter we have discussed free fall, we have discussed acceleration due to gravity. In all these cases, the object or the body is moving to in upward direction or in the downward direction. Clear? So these three equation changes, clear, for the body falling freely toward the earth surface or a body moving away from the earth surface in upward direction. So what are the changes for that? In this equation where your A is known as acceleration, previously जो आपकी थी वो A acceleration थी, but during the upward motion or the downward motion, this A changes into G and the G is known as acceleration due to gravity. Clear? ये आपकी है acceleration due to gravity. So how these three equation changes? The first equation is V is equal to U plus AT. So this equation changes, V सेम टू सेम एज इट इज रहेगा, U की जगह आपका U आएगा, इन प्लेस ऑफ A कम्स आउट टू बी G एंड T. सो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट फॉर द अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन. द सेकंड इक्वेशन इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेयर S इज द डिस्टेंस. मीन्स जब बॉडी आगे की तरफ जा रही थी या पीछे की तरफ आ रही थी अलोंग द ग्राउंड, तो उसको हम डिस्टेंस बोलते थे. But in that case, a body is moving in upward direction or body is moving in downward direction. So in that case, the S is the distance, but S in that case changes into height. So H is equal to ut plus half that A become gt square. And the third equation is V square minus U square is equal to 2as. So now this became V square minus U square is equal to 2gh. So the main point हमने यहां से आगे देखा, the main point is that कि the A change into G and S change into H. So this is the equation of motion used for when a body is moving or in motion under the influence of gravitational force of earth. Means जब body आपकी इन्फ्लुएंस में होगी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के, तो दीज थ्री इक्वेशन आर यूज. द फर्स्ट इक्वेशन इज V इज इक्वल टू U प्लस GT, सेकेंड इज H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, एंड द थर्ड इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. अगेन V is your final velocity, U is your initial velocity, T is the time, where H is the height, U is the initial velocity, T is the time. Again V is initial velocity, U is the final velocity, G is the acceleration due to gravity, and H is the height. And the value of G for
upward motion or the downward motion is fixed, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपकी थी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल यूज हियर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन का मीनिंग है कि जी आपका कब प्लस का होगा, कब माइनस का होगा, एच आपका कब प्लस का होगा, कब माइनस का होगा। दिस वी हैव डिस्कस। सो नाउ व्हाट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मीनिंग है कि व्हेन वी विल टेक द वैल्यू ऑफ जी एंड एच पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। सो वी विल स्टार्ट इट। क्लियर। सो वी नो दैट कि एवरी ऑब्जेक्ट और अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सरफेस। क्लियर। अब यहां पे 2 केस हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि इफ दिस इज योर ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स ये आपके अर्थ का सरफेस है। क्लियर। एंड दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर। वी नो दैट कि अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सरफेस। सो व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड द अर्थ सरफेस। क्लियर। और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो अर्थ का ग्रेविटेशन पुल है वो भी आपका क्या है, वो भी नीचे की तरफ है। क्लियर। मीन्स एफ कौन सा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है और अर्थ भी हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है। तो फॉर दैट केस यूर जी बिकेम पॉजिटिव। तो जी की वैल्यू आपकी प्लस की होगी। क्लियर। दूसरा केस कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। बट वी नो दैट कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो ग्रेविटेशनल पुल है, इट अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सरफेस। सो इस केस में जो बॉडी का क्या है, मोशन है। बॉडी का क्या है, मोशन। मोशन और ये क्या है, फोर्स। विच फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर। बट इन दैट केस ये क्या है, बॉडी का मोशन है और ये आपका है ग्रेविटेशन फोर्स। इस केस में दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है। तो जब आपकी बॉडी का मोशन और अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स जो हमेशा ही नीचे की तरफ होगा, व्हेन दीज आर इन द सेम डायरेक्शन योर जी टेकन एज पॉजिटिव। बट व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मोशन ऊपर की तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सो इन दैट केस योर जी इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर। तो ये था आपकी की वैल्यू जी की कब प्लस की होगी और कब क्या होगी, माइनस की। ये हमने डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइट को, कि आपका जो हाइट होगी कब प्लस की होगी, कब होगी माइनस की। सो अगेन मैं आपको कहते हैं फिर से पॉइंट समझना सभी ने। क्लियर। तो ये फिर से है अर्थ का सरफेस। क्लियर। ये अर्थ का सरफेस है कि व्हेन यहां से मैंने खड़ा होके किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया। क्लियर। सो ये आपका जो ऑब्जेक्ट था मैंने ऊपर की तरफ फेंका, तो ये ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर। तो जो ये पॉइंट है इसको मैंने कह दिया प्रोजेक्शन पॉइंट। दिस इज प्रोजेक्शन पॉइंट। कि जब आपका ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगा, मींस कोई भी प्रोजेक्शन पॉइंट है, ये आपका प्रोजेक्शन, यहां से मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं और ये अगर प्रोजेक्शन पॉइंट से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा आपका। क्लियर। तो इन दैट केस जो आपका एच होगा वो होगा प्लस का। क्लियर। अब मैंने क्या ले लिया कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई बिल्डिंग है। क्लियर। दिस इज एनी बिल्डिंग। ये आपकी कोई बिल्डिंग थी। क्लियर। इस बिल्डिंग की जो रूफ थी उसके ऊपर खड़ा होके किसी पर्सन ने इसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया। तो अब ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे की तरफ आ रहा है लाइक दिस। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये था क्या, ये था प्रोजेक्शन पॉइंट। ये आपका क्या था, प्रोजेक्शन पॉइंट। तो इन दैट केस जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्शन पॉइंट से कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। प्रोजेक्शन पॉइंट कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इन दैट केस योर एच इज टेकन एज नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्रोजेक्शन पॉइंट से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो पॉजिटिव है, अगर प्रोजेक्शन पॉइंट से नीचे की तरफ आएगा वो आपका क्या है, नेगेटिव होगा। क्लियर। तो इस केस में जो आपका एच होगा माइनस का होगा। सिंपल सी पॉइंट समझना बेटा, जहां से हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, उससे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां से मैं फेंक रहा हूं और ऑब्जेक्ट इससे ऊपर जा रहा है तो ये प्लस का होगा। अब यहां से मैं फेंक रहा हूं और इससे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये होगा माइनस का।
अब बात आती है यू वी की वैल्यू की, कि यू वी क्या होंगे। इसी को यहीं पे समझ लेते हैं हम, कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकना है तो दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। कि जो ऑब्जेक्ट है जब उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अगर हम उसको जीरो वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो वो तो जाएगा नहीं। मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, क्लियर, यहां पे लिख देते हैं पॉइंट थर्ड, कि जब कोई ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, क्लियर, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, सो इन दैट केस यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हैव सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मीन्स अगर हम जीरो की इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा नहीं। बट व्हेन फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या किया, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया तो ये पहले ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट यहां तक गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद इस ऑब्जेक्ट ने फिर नीचे आना है इसी डायरेक्शन में ऑन द स्ट्रेट पाथ। अगर मैं सीधा ऊपर फेंकता हूं तो इसका मतलब यह है कि ये पहले ऊपर गया, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन ये एक मैक्सिमम हाइट के बाद ये नीचे आना शुरू हो गया। मीन्स जब ये मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद वापस नीचे आएगा तो मैक्सिमम हाइट जो होगी, यहां पे ऑब्जेक्ट आपका किसी पॉइंट ऑफ सेकंड के लिए दैट कम्स इनटू रेस्ट। अब ये पॉइंट क्या समझना है हमने, कि जब ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे ऊपर की तरफ, कहां फेंकेंगे हम, इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो इन दैट केस यू हैव सम वैल्यू, बट जो आपका v होगा वो जीरो होगा, v आपका क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। सिमिलरली जब किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ फेंकेंगे तो इन दैट केस जो u होगा वो आपका जीरो होगा। बट जीरो क्यों, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से फेंकना है तो फॉर एग्जांपल ये कोई पर्सन था जो इस रूफ पे खड़ा था, तो इसने इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका था, तो नीचे फेंकने से पहले इसने अपने हाथ में इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा, तो जो ऑब्जेक्ट इसके हाथ में था दैट इज इन रेस्ट। किसमें था वो, रेस्ट में था। तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, बट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी हैव सम वैल्यू, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। इन सबको हम डिस्कस करेंगे बाय डूइंग सम न्यूमेरिकल्स। सो ये आपका था मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो तीन इक्वेशन वो चेंज कर दी। ये हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किए हैं। जब ऊपर फेंकेंगे तो u की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन v आपका जीरो होगा। जब नीचे आएगा तो u आपका जीरो होगा, बट v की कुछ ना कुछ वैल्यू। मीन्स द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ग्राउंड को हिट करेगा, कुछ फाइनल वेलोसिटी जो उसकी होगी। वो अलग बात है कि जब वो ग्राउंड को हिट कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली दैट ऑब्जेक्ट कम्स इनटू रेस्ट, लेकिन हिट करने से पहले उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस 1 or 2 न्यूमेरिकल अबाउट दिस टॉपिक। सो नाउ बेटा देयर इज अ गिवन अ न्यूमेरिकल, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस, इट टेक 4 seconds टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। अब मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना रहा हूं एक, ताकि आपको समझ सको कि क्या क्या इसमें हमने लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई हाउस है, क्लियर। इस हाउस की बिल्डिंग से, ये जो हाउस है यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका है यहाँ पे। मीन्स द ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो इन दैट केस मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। मीन्स यहां से फेंकने के लिए इसको एक बार हाथ में पकड़ना पड़ेगा। हाथ में पकड़ेगा तो ऑब्जेक्ट किसमें, रेस्ट में। तो आपका जो u है वो तो हो गया जीरो, क्लियर। और सेकंड पॉइंट उसने कहा है कि इट विल टेक, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, 4 सेकंड की जो t है आपका वो आपका 4 सेकंड है। मींस द ऑब्जेक्ट टेक 4 सेकंड, द ऑब्जेक्ट टेक 4 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, क्लियर। इसका मतलब u की वैल्यू जीरो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हमने बोला था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो u जीरो होगा, v की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उसके बाद हमें कहता है यहां से कि इट विल टेक टाइम, कितना टाइम लिया इसने, 4 सेकंड। तो जो t दिया आपको वो दे दिया 4 सेकंड। अब अगर t 4 सेकंड है और वी हैव टू फाइंड द हाइट, हमने ये हाइट निकालनी, तो हमारे पास 3 इक्वेशन है बेटा यहाँ पे। एक फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, उसके अंदर तो h है ही नहीं है। फिर हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 2,
वो थी आपकी h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। तो उसमें h है, उसके अंदर टाइम भी है, लेकिन जो थर्ड इक्वेशन थी अपनी वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2gh। तो मैं तीनों लिखता हूं। पहली इक्वेशन में लिख दी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरी आपकी है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। और जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी वो थी वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2gh। तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्लियर, क्योंकि इसके अंदर h ही नहीं है, हमने हाइट निकालनी है। इन दोनों में से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर आपका टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। अब बात आती है यहाँ पे कि g की वैल्यू प्लस की होगी या माइनस की होगी। तो भाई सिंपल बात है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ, नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट भी कहाँ रहा है, नीचे की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जो g होगा वो आपका होगा प्लस का। g किस चीज का होगा, आपका प्लस का होगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इसको हम पुट करते हैं वैल्यू और देखते हैं क्या आपकी हाइट आती है, क्लियर। तो वी विल यूज इक्वेशन सेकंड। सो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, क्लियर। तो अब हमने h निकालना है। तो ऑब्जेक्ट इनिशियली किस में है, रेस्ट में है। तो u की वैल्यू 0, तो 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू में कितनी है 9.8 इंटू में t का स्केयर। तो t कितना था 4, तो 4 का स्केयर। तो h की वैल्यू आपकी आ गई यहां से 0 प्लस हाफ इंटू में 9.8 इंटू 16, क्लियर। अब यहां से इसको कट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कितनी आएगी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 8 8 जा 64, तो 4 यहाँ पे 6 आ गया आपका। तो 8 9 जा 72, 72 प्लस 6 दैट इज 78। तो दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये आपका जर्नल न्यूमेरिकल था एक, क्लियर। इसके बाद हम एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड टू राइज टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। की एक ऑब्जेक्ट उसको वर्टिकल ऊपर की तरफ फेंका गया और 20 मीटर हाइट तक उसने राइज किया। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं इसका। मीन्स बेटा इफ यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दीज क्वेश्चन, सो दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी टू डू। ये क्वेश्चन आपके बहुत आसान है करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने फेंका ऊपर की तरफ। तो ये आपका था ऑब्जेक्ट जो जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये आपका यहाँ पहुंच गया भाई, क्लियर। तो जो इसने हाइट गेन की है वो कितनी गेन की है भाई, दैट इज 20 मीटर। तो हमने यहां से फेंका था, तो ये कहां मूव करे, प्रोजेक्शन पॉइंट से ऊपर। तो जो h होगा वो होगा प्लस का। तो यहाँ पे पहले लिख दिया जो h है दैट इज ऑफ 20 मीटर, क्लियर। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, अपवर्ड। अपवर्ड मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो u की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जो v होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। और वी ऑलवेज नो दैट कि g की जो वैल्यू है वो हमने क्या लेनी है, प्लस की या माइनस की, वो डिपेंड करता है। इस केस में जो g लेना है आपने वो लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो g प्लस का लेंगे माइनस का लेंगे वो हम देखते हैं क्या है। तो भाई जो ऑब्जेक्ट है कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, नीचे की तरफ। तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट। तो g जो होगा वो होगा माइनस का। तो g की वैल्यू होगी माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने निकालना है h। तो h निकालने के लिए हमारे पास होती हैं दो इक्वेशन, या तो सेकंड होगी या थर्ड होगी, क्लियर। सेकंड को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ। हम किसको यूज करेंगे, थर्ड को यूज करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन आपकी थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh ये होती है। तो v आपका क्या है, 0। तो ये हमने लिख दिया 0 माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी किसका लेना है, माइनस के 10 इंटू एच कितना आपका 20 प्लस का। तो ये आपका आ गया यहां से माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 टू 4, तो माइनस के 400। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यू स्क्वायर की जगह हम u आ गया आपका अंडर रूट 400, और अंडर रूट 400 होता है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसको कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, तो जो u है आपका वो है 20। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है
द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है, तो सेकंड यूज करेंगे या फर्स्ट यूज करेंगे। क्लियर। अब सेकंड यूज करो फर्स्ट यूज करो, वो आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में आपका एस इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा, वहां से मुश्किल होता है थोड़ा निकालना, क्योंकि वहां से आपकी जो इक्वेशन बनती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आंसर वहां से भी आ जाएगा, लेकिन हम यूज करेंगे फर्स्ट। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। हमारे पास सभी वैल्यू है, तो v तो आपका क्या है, 0 है। u हमने अभी निकाला, कितना निकाला था u वी हैव कैलकुलेट 20 प्लस a हमने कितना लेना है, माइनस के 10 मतलब ये g है आपका 10 इंटू में t। इस 20 को उठा के उधर लेके चले गए, तो माइनस के 20 इज इक्वल टू माइनस के 10t। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर। योर t कम्स आउट टू बी 20 डिवाइड बाई 10। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ गया 2 सेकंड। मीन्स इस हाइट तक पहुंचने उसको कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगे। एक बार वो बता देता हूं, जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। इसको भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। s कितना है अपना है 20, u कितना आया था 20, सॉरी s अपना है, s इज ऑल्सो 20 एंड u वी हैव कैलकुलेट 20, तो बोथ कम्स 20, ये भी 20 है और ये भी आपका 20 था, इंटू में t प्लस यहां पे आएगा हाफ, g कितना लेना है माइनस के 10 इंटू में टी स्क्र। तो ये बन गया 20 इज इक्वल टू 20t माइनस, इसको काट दिया मैंने तो यहां पे आ गया आपका माइनस के 5t स्क्र। क्लियर। इन दोनों को उठा के उधर लेके चले गए, तो आपका आएगा वहां पे 5t स्क्र माइनस के 20t प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। यहां से 5 कौन ले, तो t स्क्र माइनस 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। ये आपका जो आपने क्लास 8th में किया था मिडल स्प्लिटिंग वाला, कि हम ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसके हम 2 से जब उनको ऐड करें 2 आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 आना चाहिए। क्लियर। तो ये हमने यहां से फिर इसलिए इस इक्वेशन को सोल्व करना मुश्किल है, इसलिए हमने ये यूज किया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो ऐसे आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे विच आर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट विच वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट, जो हम नेक्स्ट पार्ट में यूज करेंगे या नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो आपको अलग से वीडियो मिलेगी एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो भी नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास। सो व्हाट इज मास? द मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in the body, उसको हम मास कहते हैं। एंड वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 9 द मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास is the measure of inertia. Mass is the measure of inertia. Clear? And mass is measured in inertia, so that is also known as inertial mass. उसको हम inertial mass भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इनसाइड बॉडी। अगर हम हमारा एग्जांपल लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन, ब्लड वेसल्स, बोन्स, क्लियर, वो सारी क्वांटिटी ऑफ मैटर है। सिंपली अगर आपका हम स्कूल बैग देखते हैं, इस स्कूल बैग में क्या है? वेरियस बुक्स, नोटबुक्स, अदर मटेरियल्स। सो किसी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है? मैटर वी हैव डिस्कस इन चैप्टर 2, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम मास कहते हैं। तो मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इनसाइड अ बॉडी। अब यहां पे बात आती है कि यूनिट ऑफ मास की मास की यूनिट क्या होगी? द मास इज मेजर्ड इन केजी। क्लियर। अब जो केजी है वो कौन सी यूनिट है? दैट इज एसआई। अदर यूनिट आल्सो ग्राम, पाउंड, दीज आर आल्सो द यूनिट ऑफ मास। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बेटा, द फर्स्ट इज द डेफिनेशन।
कि मास ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। मीन्स किसी बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा उसका मास उतना ही ज्यादा होगा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन ही है कि द मास ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल, कि जो मास ऑफ बॉडी है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। तो पहले लिख सकते हो द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज मास, कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, मास होगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि जो आपका मास है, मास डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड स्टेट, कि जो आपका मास है वो शेप, साइज और स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम देखते हैं एक बैलून, तो बैलून के जब हम अंदर एयर फिल कर देते हैं उसका साइज तो बड़ा हो जाता है लेकिन उसका मास कम है। दूसरी तरफ जब हम लिखते हैं कोई भी आपका जो आयरन का स्पीयर होता है, विच इज इन शॉर्ट पुट गेम होती है जो आपकी, उसके अंदर हम स्पीयर देखते हैं, दैट इज ओ वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू बैलून, लेकिन उसका मास क्या है, ज्यादा है। कि मीन्स जो मास है किसी बॉडी का वो उसकी शेप पे, उसके साइज पे, उसके स्टेट पे डिपेंड नहीं। स्टेट मतलब कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। मीन्स मास इज इंडिपेंडेंट टू द शेप, साइज एंड द स्टेट। थर्ड पॉइंट, मास जो होता है डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जो मास होता है इट इज रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स मास की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। मीन्स मास नेवर चेंजेस, आपका मास कभी चेंज नहीं होगा। किसी बॉडी का जो मास है वो प्लेस टू प्लेस आपका चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका एक बैग है, उस बैग के अंदर बुक्स हैं, तो उसका कुछ ना कुछ मास है, क्लियर, कंटेन इनसाइड। अब उस बैग को अगर हम कहीं भी लेके जाएं, आपके घर पे, आपके स्कूल में, कहीं पे भी लेके जाएं, कि जो मास होगा इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जो मास होगा वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट के बाद आता है फोर्थ पॉइंट, कि जो मास है दैट इज नेवर बी जीरो, कि जो मास होगा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। मीन्स अगर कोई बॉडी है, कोई अगर मैटर है, उसी को मैटर कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मास है। मीन्स मास की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्लियर, मास हमेशा हर एक जगह पे सेम रहेगा। क्लियर, जो आपका फिफ्थ पॉइंट है उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इन दी प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी नियर इट। मीन्स अगर एक ये बॉडी है दैट इज ऑफ 5 kg, इसके पास पहले अकेली 5 kg, तब भी इसका मास क्या था, 5 kg था। मैंने इसके पास एक बॉडी और रखती जिसका मास है 10 kg। क्लियर, तो अब हम क्या देखते हैं, इसका मास पहले भी 5 kg था और अब भी क्या है, 5 kg है। तो पॉइंट क्या समझा यहां से, द मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज इन दी प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी नियर इट। मीन्स मास किसी भी बॉडी का चेंज नहीं होगा किसी अदर बॉडी की प्रेजेंस से। मीन्स ये सारे पॉइंट बेटा जो मैं आपको ओरली बता रहा हूं, दैट यू हैव टू फेयर आल्सो, लिसन केयरफुली एंड फेयर इट। क्लियर, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टाइम से सबसे पहले वीडियो मिल जाए कि आज हमने ये वीडियो अपलोड किया है। और साथ साथ लाइक करते चलो, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करते चलो। उसके बाद आता है कि मास को मेजर किससे करेंगे, द मास इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस। किससे मेजर करेंगे उसको हम, बीम बैलेंस। मीन्स ये एक आपकी डिवाइस है जिसके साथ हम मेजर करते हैं मास को। वेइंग मशीन से वेट मेजर होता है, वेइंग मशीन से क्या मेजर होता है, वेट, बट वी हैव टू मेजर द मास दैट विल यूज द बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस होती है, ये बीम बैलेंस आपने कहां देखा होगा, अब तो नहीं दिखेगा कहीं पे। पहले जो ये बीम बैलेंस होता था दैट इज यू हैव सीन इन, जो आपके गोल्ड स्मिथ होते थे, सुनारों की दुकान होती थी, उनके अंदर आपने देखा होगा बॉक्स के अंदर रखा हुआ, तो वो आपका होता था बीम बैलेंस। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मास की जो हमने डिस्कस की। तो इसके बाद हम चलेंगे वेट के ऊपर। आपका है वेट, तो व्हाट इज वेट, द वेट इज अ फोर्स। अब यहां पे पॉइंट समझना है कि जो वेट है एक फोर्स है। कौन सा फोर्स, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सरफेस। क्लियर, तो जब
अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करती थी, या कोई ऑब्जेक्ट जब अर्थ की सरफेस की तरफ आता था, तो उस टाइम जो आपकी एक्सेलरेशन होती थी दैट इज रिटन बाय जी, विच इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते थे। अब हमने क्या कहा कि लेट अस कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m is moving toward the earth surface or attract by the earth surface or attract by the earth, so we know that कि जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो होता है F is equal to ma from the second law, but in that case during the earth gravitational pull this a become g, so F comes out to be mg, so this force is equal to mg and this force is known as weight, जिसको हम W से लिखते हैं, तो W comes out to be mg। तो अब यहां से पॉइंट का समझना कि द फोर्स इज इक्वल टू द वेट, एंड द फोर्स जो किसके इक्वल था वो था mg के इक्वल, तो जो आपका वेट भी होगा दैट बिकम W एंड W इज इक्वल टू दी mg। अब यहां पे बात आती है वेट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो हमने कहा द वेट इज अ फोर्स, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वेट, तो अगर वेट एक फोर्स है और फोर्स की यूनिट अगर न्यूटन थी तो वेट की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन होगी। क्लियर। और दूसरा पॉइंट जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वो बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ W चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब प्लेस टू प्लेस चेंज क्यों करती है वैल्यू, बिकॉज जो W था वो था आपका mg, m तो आपका होता है फिक्स, लेकिन जो g है उसकी वैल्यू क्या करती है, वेरीज करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्लियर। अब जो g की वैल्यू है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वो होती है 0, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो g है वो 0 है, तो अगर सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर g 0 है तो योर W बिकम m इंटू में 0, तो दिस कम्स आउट टू बी 0। मीन्स किसी भी बॉडी का वेट 0 हो सकता है, कब, जब वो बॉडी कहां पे होगी, सेंटर ऑफ द अर्थ। मीन्स जो वैल्यू ऑफ वेट 0 भी हो सकता है, और वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज भी करते हैं, लेकिन जो पहले क्या था हमारा कि जो वेट था, जो आपका वेट जो मास था वो चेंज नहीं करता, उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, लेकिन वेट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज करती है, और वेट की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है न्यूटन। क्लियर। और जो वेट है आपका दैट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन। इसको किससे मेजर करते हैं अपन, वेइंग मशीन से या स्प्रिंग बैलेंस से। तो वेट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन, वेइंग मशीन। मीन्स वेट को मेजर किससे करेंगे, मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन। तो हमने वेट और मास के बारे में बातें पढ़ी हैं कि वेट क्या है, मास क्या है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद हमने एक और पॉइंट याद रखना कि जो वेट है, वेट इज अ फोर्स, और फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट भी आपका क्या होगा, वेक्टर होगा, लेकिन मास जो आपका है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, जो आपने चैप्टर आपका जो 8th हाउस में पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हम करेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द सरफेस ऑफ द मून में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट है आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो वी नो दैट वेट इज अ फोर्स, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, देखें कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल WE इज द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो जो वेट होगा वो होगा m इंटू में GE, G मीन्स ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो हमने कल किया था एक फॉर्मूला कि G जो आपका था वो था G कैपिटल M डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्लियर, ये अर्थ के लिए था। तो अगर ये आपका GE है तो मींस दिस कम्स आउट टू बी GE ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो द वेट ऑन द अर्थ बिकेम क्या बनेगा आपका M इंटू में GME डिवाइड बाय RE स्क्वायर। और इसको मैं लिखता हूं तो ये आपका आ गया GME इंटू में M डिवाइड बाय RE स्क्वायर।
अगर इसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करता हूं, वो आपकी क्या वैल्यू थी, तो आपका जो एफ था, क्लियर, तो एफ आपका था जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्लियर। या फिर हमने ऐसे लिखा था कि एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर। अब अगर हम इसको अर्थ के लिखते हैं तो दिस बिकम फोर्स ऑफ अर्थ, तो यहां पे आपका आ जाएगा एम ई मींस मास ऑफ अर्थ, क्लियर। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, ये आपका क्या था, वेट है, ये आपका क्या फोर्स है, तो वो हमने पहले बोला है कि वेट इज अ फोर्स, सो डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एफ ई। अब दोनों तरीके से आ रहे हैं। अगर अर्थ के लिए हमने एफ लिखना है तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट ये एम है, जिसका मास एम है, वो कहां पे है, अर्थ पे, क्लियर, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, क्लियर। और कैपिटल एम जो है वो क्या है, मास ऑफ द अर्थ, क्लियर, दिस इज द मास ऑब्जेक्ट, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। तो जो एफ बनेगा वो एफ का एफ क्या होगा, दैट इज जी इज द ग्रेविटी, कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर, आर मींस रेडियस, आर क्या था, डिस्टेंस। अब जो यहाँ पे होगा हर एक जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ का वो होता है सरफेस, तो हर एक ऑब्जेक्ट यहीं पे कहीं ना कहीं होगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम कह देते हैं कि आर, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर, क्लियर। तो ये था आपका वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हमने वेट निकालना है सरफेस ऑफ द मून, अब मून के लिए क्या होगा, कोई मुश्किल नहीं है, तो अगर मैं लिखता हूं वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो मून के लिए वेट क्या होगा, कोई मुश्किल नहीं है, तो यहां पे लिखूंगा डब्ल्यू ऑफ एम, वेट ऑन मून, तो जो मास है वो तो हर जगह सेम रहता है, क्लियर। तो दिस बिकेम एम इंटू में जीएम। अब जीएम क्या है, ग्रेविटी ऑफ द मून, जीएम आपका क्या था, ग्रेविटी ऑफ द मून। तो अगर जीएम ग्रेविटी ऑफ मून है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो एम इंटू में जीएम की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहां से जीएम लिखता हूं तो यहाँ पे आएगा कैपिटल जी कैपिटल एम एम। अब ये है एम के छोटा नीचे बेटा पैर में है, यहाँ पे स्मॉल एम मींस मास ऑफ द मून डिवाइड बाय आर एम रेडियस ऑफ द मून। तो यहाँ पुट कर देंगे हम वैल्यू, तो वैल्यू आएगी आपकी जी एम एम डिवाइड बाय आर एम का स्क्वायर। सो डब्ल्यू एम क्या है, मींस वेट ऑफ द ऑन द मून कम्स आउट टू बी जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर एम का स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशन बिटवीन द वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, रिलेशन बिटवीन WE एंड WM मींस वेट ऑफ द मून एंड वेट ऑन द अर्थ के बीच में क्या रिलेशन है, तो कोई मुश्किल नहीं रिलेशन निकालनी। वी नो दैट कि W ऑफ E इज इक्वल टू किसके होगा, दैट इज इक्वल टू M इंटू में GE, क्लियर, यही होता भी M इंटू जी। और जो W ऑफ M होगा वो क्या होगा, M इंटू में GM, क्लियर। अब हम यहाँ पे एक रिलेशन करके आए थे, क्या रिलेशन थी वो, वी नो दैट, पीछे हमने प्रूव किया था कि जो जी ऑफ एम होगा दैट इज 1/6 ऑफ जीई, कि जो ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस इज दी 1/6 ऑन द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो इन प्लेस ऑफ जीएम तो मैं लिख दूंगा डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम एज इट इज, आ गया आपका भाई, जीएम की वैल्यू पुट कर देते हैं, जीएम की वैल्यू क्या है 1/6 जी, तो यहां पे लिख दिया मैंने जीई डिवाइड बाय 6। तो अगर इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं तो डब्ल्यू एम इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये बन गई 1/6 इंटू में m इंटू में जीई। तो ये m इंटू में जो जीई है, m इंटू में जो जीई है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू WE। तो अगर मैं इस रिलेशन को आगे लेके जाता हूं तो WM कम्स आउट टू बी 1/6 ऑफ WE मींस जो किसी बॉडी का वेट अर्थ पे होगा मून पे जाके उसका हो जाएगा 1/6। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोई ऑब्जेक्ट का उसका मास है 10 kg, कह रहा है अर्थ के ऊपर उसका मास क्या होगा और मून के ऊपर मास क्या होगा। बेटा जो मास है वो आपका चेंज नहीं करता, अगर वो चेंज नहीं करेगा तो अर्थ पे भी कितना है 10 होगा और मून पे भी कितना होगा 10 होगा। तो चेंज क्या करता है, वेट, तो वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर अर्थ पे वेट कितना है 10 है तो मून पे जाके क्या होगा, दैट बिकम वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू में 10। तो ये एक रिलेशन थी वेट ऑन द मून एंड वेट ऑन द अर्थ।
तो आपका एक क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन दी वेट एंड द मास और वेट के बीच में हमने डिफरेंशिएट करना है। तो दिस इज योर डेरिवेशन, और वी कैन से दैट कि आपका जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। अब इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो था फ्लोटेशन, वो फ्लोटेशन अब हमारे पास नहीं है, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस, और मे बी वी कैन से दैट, ये भी हम कह सकते हैं कि वो आपका नेक्स्ट चैप्टर बनेगा अगर हम उसको करवाते हैं, दैट इज फ्लोटेशन, लेकिन इस साल के लिए उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये आपका आज का फिजिक्स का वर्क था, इसको आपने पूरा करना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्लियर? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एट द एंड आपने अपने नाम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर? और वीडियो को लाइक करना है, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है? सो थैंक यू, दिस इज ओवर फॉर टुडे। वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चंस आंसर ऑफ दिस चैप्टर।